Hi guys, we have today with us Abhishek. So Abhishek Jha is CMAT का rank 10. So Abhishek, today we want to know about the complete story. First of all, CMAT वही देता है जिस, so this is the main agenda for the day today. How to score 99.98 in CMAT. So I want you to talk about your journey as we go along. So पहले आप अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता दो कि आपने कब से स्टार्ट किया था. What is your background? So first I'll start with my academics. Like एकदम 10th से start करते हैं. तो 10th में score अच्छा था. Like best 5 में it was ICSE. I was from ICSE board. तो उसमें 94% था और 12th में it was 93. तो उसके बाद as every PCM का student does, I gave JEE main, JEE advanced. Hopefully clear भी हुआ, ठीक ठाक rank भी आया. But all these things I did in first attempt without coaching. And then घर के पास I got admitted into a marine engineering college. Like that is the oldest college in Asia, and it's the only government college for marine engineering. तो मैं वहाँ गया. Like शुरू में तो इंजीनियर का आप सर समझते ही हैं, you yourself being an engineer. तो खैर मरीन इंजीनियरिंग थोड़ा टफ था, ग्लैमरस था, लेकिन जो व्हाइट यूनिफॉर्म, देन दुनिया घूमना, काफी ग्लैमरस था. तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग काफी अच्छे से की. उसमें बीटेक में आई गॉट 83% एंड आई वाज द यूनिवर्सिटी टॉपर of Indian Maritime University 2014 entry में. So academically I have always been very strong, and side by side I have gone around 10 to 12 national level debates and few personality tests also, extemper and all these things. I've been doing it since a very tender age, like class 6 7 से start कर दिया था. तो एक प्रोफाइल ऑलरेडी हल्का सा लाइक बिल्डअप हो गया था एकेडमिकली. तो फिर I got placed in NYK Lines Japan. Now sir, NYK, Kawasaki and all these big shipping companies are merged together. So when I joined, it was Nippon Ocean Kaisa. So it's like in the top 10 shipping companies in the world. So and only 5 of us were selected from campus placement. तो काफी अच्छा था, पैकेज भी अच्छा था. तो I went for training. 6 months में रहा शिप पे. My second ship was a petrol tanker. तो मैंने अपना स्पेशलाइजेशन भी पेट्रोल में किया था. And after that things happened, like my mom felt ill. My brother, he got selected in the Indian Air Force, but just few days before commissioning, he was through FCAT entry, but just few days before commissioning he started suffering from epileptic seizure. उसके सर में Oh चोट my लगी. God. So like it would have been the biggest day of our family's life, brother passing out from Indian Air Force Academy. Chota bhai, and he was the youngest to clear FCAT that year, and he's like one step ahead of me always. So मेरा 12th में 94, he got 99. It's like that. So way ahead. तो उसके बाद उसने फिर मुझे इस सब कारणों की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा. और एल्स मैंने पहले सोचा था कि मैं कुछ साल सेलिंग करूंगा, आई पे ऑफ माय एजुकेशनल लोन एंड देन आई अपीयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, और मे बी आई डू एग्जीक्यूटिव एमबीए एज माय सीनियर्स हैव डन. बट अनफॉर्चुनेटली ये सब कारणों की वजह से आई हैड टू लीव द जॉब. देन आई केम बैक. इट्स अबाउट दिसंबर जनवरी 2019. 18 में आई पास्ड आउट. ऑलमोस्ट 8-9 months आई वर्क. तो दिसंबर में आई केम बैक. देन आई अप्लाइड फॉर फ्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे पढ़ाने वाला जॉब, लाइक जेई के लिए मैथ्स पढ़ाना एंड सीडीएस एंड एनडीए के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाना. तो उसमें मैं मैथ्स पढ़ाता था. तो उसमें माय कोचिंग इंस्टीट्यूट दे ट्रांसफर्ड मी टू रायपुर. तो मैं रायपुर गया. वहाँ आई वाज स्टेइंग रेंट पे. थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ था. लाइक आप अचानक से फ्रॉम टोक्यो यू आर गोइंग टू रायपुर. यू कैन अंडरस्टैंड. I can understand. I From can seven definitely. stars, from 7-star 5-star hotels, and from like glamorous life, you are suddenly मतलब आप अचानक से एक सिंगल रूम में रेंट पे हो. यू आर टीचिंग 11-12 के बच्चे. तो बट लाइक वो स्ट्रगल जो था ना, वो स्ट्रगल ऐसा था, मेरे को अकेले खाना बनाना भी नहीं आता था. तो कुछ टाइम ऐसा भी बीता कि मैं सिर्फ नमक रोटी पे भी जिया हूँ. बिकॉज जब मैं वहाँ गया तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पैकेज जो बोला था वैसा कुछ हुआ नहीं. तो कुछ महीने के बाद आई हैड टू लीव दैट. But side by side I got some home tuitions, and then I got into Paramount. That जो वहाँ के एक्चुअली मालिक थे कि आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप सीडीएस क्लियर किए हो, एनडी ऑल दिस एग्जाम्स आप ऑलरेडी क्लियर्ड, एंड आप इतने बड़े कॉलेज से टॉपर हो, तो इसमें आपका स्कोप है जेई तक लिमिटेड. अगर आप कैट निकाल लो, कैट मैट सीमेट ये सब भी निकाल लो, तो आपका प्रोफाइल थोड़ा और ये हो जाएगा. मैंने कैट का पहले सोचा था बट उतना जल्दी नहीं. तो उन्होंने कहा इफ यू कैन क्रैक कैट देन आई लेट यू टीच हियर for this bank fee and all these things, and I'll pay you almost the double. So basically
कैट सिर्फ एमबीए के बाद पैकेज अच्छा नहीं देता, कैट पास कर लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सैलरी डबल कर देती है। तो साइड बाय साइड, बीइंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल एंड मॉडेस्ट बैकग्राउंड, एंड यू कैन अंडरस्टैंड, एक आजकल रहता है एक क्रेज, कहीं ना कहीं बच्चों के मन में रहता है कि एमबीए इज स्लाइटली अनसर्टेन इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू द बैंड एबीसी वाला कॉलेज, राइट। एंड तो एक मेरे मन में भी था, तो मैंने आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ की तैयारी कर दी, क्योंकि मैंने सोचा कि आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ कैट मैट सीमैट एंड ऑल दिस एग्जाम्स आर ऑन द सेम पैटर्न एटलीस्ट, और मेंस में तो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस इज एज टफ एज कैट। एटलीस्ट दिस ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस वाज वेरी टफ, 225 में 70 कट ऑफ जा रहा है, मतलब, तो दैट इज टफ। तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन एक्चुअली चालू किया। तो आपके फिर कहीं ना कहीं मेरे सीनियर्स कुछ थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपका लिंक भेजा, तो आपके वीडियोस देखने चालू किए, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला, वाई एमबीए। फिर कहीं ना कहीं बैकअप से दिस एमबीए स्टार्टेड कि हाँ, अब शायद एमबीए एक अच्छा ऑप्शन है, अगर बैंक पीओ नहीं निकला तो मैं एमबीए में जा सकता हूँ, या अगर आईएम्स मिल जाते हैं तो कर सकता हूँ। तो कैट दिया पहले, तो मैं ये दिया, आईबीपीएस आ रहा था अक्टूबर में, तो आईबीपीएस पीओ मैंने दिया, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, एंड फाइनली टुडे आई गॉट सेलेक्टेड एंड असिस्टेंट मैनेजर इंडियन बैंक। अच्छा, आज रिजल्ट आया? नहीं, 4-5 दिन पहले आया, बट नाउ आई हैव बीन सेलेक्टेड। 20 तारीख को रिजल्ट आया। अच्छा, समझ गया सॉरी। हाँ, तो अब जब मैं आईबीपीएस पीओ दे रहा था एज अ बैकअप, और यू कैन से टू डबल माय सैलरी व्हाट द कोचिंग इज पेइंग मी, आई अपीयर्ड फॉर कैट। तो कैट में आई गॉट अ रिस्पेक्टेबल परसेंटाइल, मैंने कुछ मॉक्स दिए थे, तो लेकिन उतने अच्छे आईएम्स के कॉल नहीं थे। कैप राउंड कितना था कैट परसेंट, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग अस? या 96 परसेंटाइल, लेकिन कैप राउंड का कॉल आया? बिकॉज ऑफ एकेड्स। हाँ, मेन तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली कैप का कॉल आएगा। ठीक, मेन तो कुछ भी नहीं, मेन तो मैंने एफएमएस भरा ही नहीं, उसके बाद आईआईटीज भरा ही नहीं। मैं सोचा कि हाँ यार 98 रहता तो कुछ अब, बट आई वाज सेटिस्फाइड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना मतलब कोचिंग के, या मतलब जस्ट कुछ वीडियोस देख के एंड थोड़े बहुत मॉक्स लगा के, एंड बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती है जैसे अरुण शर्मा, सर्वेश वर्मा, राइट, पीपल फॉलो दैट, तो उसी को करके आई जस्ट अपीयर्ड फॉर कैट। एंड थोड़ा ऐसा था, जब तक मैं जेई कोचिंग में था, तो आप समझते हो थोड़ा सा उसमें ना एफर्ट डालना पड़ता है ज्यादा, बिकॉज 8 to 10 आवर्स पढ़ाना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं शाम को घर आता था, लाइक 8-9 बज जाते थे, एंड उसके बाद खाना वाना खा के 10-11-12 बजे तक आई यूज्ड टू सॉल्व। क्वांट वाज ऑलवेज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, लाइक सिंस फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई हैव बीन देयर, एंड लाइक 12th में आल्सो आई गॉट 98 इन मैथमेटिक्स। तो ऑल दीज, क्योंकि यार एवरेज है क्या, एवरेज सबको पता है एवरेज क्या है, बेसिकली यू डोंट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ना टू नो एवरेज या प्रॉफिट लॉस। 10 रुपए का आलू खरीदा, 20 रुपए में बेचा, दैट इज प्रॉफिट, बट टू एनालाइज वेयर यू आर गोइंग डाउन यू हैव टू गिव मॉक्स। मॉक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ होगा ही नहीं, आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे कि आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, आप किस पॉइंट पे फंस रहे हो। एंड rather than giving, था बच्चे 100 मार्क्स दे देते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते। मैं लाइक कैट से पहले 1-2 मॉक्स दिया था, 2-3 मॉक्स, हाँ, तो उसको मैं एनालाइज बहुत अच्छे से किया कि हाँ मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता, ज्योमेट्री में मेरे से यहाँ गलती, ऑल दीज थिंग्स आई एनालाइज्ड। इसके बाद मैंने 24 तारीख को मेरा कैट था, एंड 30 तारीख को मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस था। तो बेसिकली आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए मेरा मॉक ऑलरेडी कैट था। जब मैं आईबीपीएस पीओ मेंस में बैठा और कैट में बैठा, मैंने जब पेपर कंपेयर किया तो थोड़ा देर तक पीओ मेंस में मेरा वो बोलते ना तोते उड़ गए। मैं सोचा नहीं था कि इतना टफ भी कोई चीज आ सकता है। 3.5 घंटे का पेपर, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एसे, एंड वो 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। हाँ, सीमैट में इसके बाद मैट आया, मैट में आई गॉट, मैट सितंबर आई एम टॉकिंग, मैट सितंबर में आई गॉट 99.90, एंड उसमें क्वांट में आई थिंक उसमें आई गॉट आउट ऑफ 800 799.5, दैट वाज आल्सो माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड फिर आई अटेम्प्टेड सीमैट, बिकॉज तब तक हल्ला उड़ गया था कि JBIMS विल नॉट एक्सेप्ट मैट एंड ऑल, तो यू हैव टू अपीयर फॉर सीमैट। तो आई अपीयर्ड फॉर सीमैट। अब सीमैट में क्वांट इज नॉट, सॉरी टू कटिंग इन, ये फेज कब आया? ये कैट होने के बाद आया? ये कब आपको? ये कैट होने के बाद, राइट, जैसे मैंने कैट दिया तो कैट में मेरे को लग गया था हाँ इतना 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 परसेंटाइल बनेगा, तो चांस तो नहीं है उतना अच्छे आईआईएम्स का। और बेसिकली अगर पुराने आईआईएम्स मिलते हैं
लाइक तब तो कोई बात होती. बेबी आईएम्स में सर यू नो द पैकेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एसबीआईपीओ या आईबीपीएस ऑलमोस्ट सिमिलर. And plus in IBPS PO, you don't have to invest money. And in this thing, I already have an educational loan on my head. So I cannot afford another education loan for I think baby IIMs and new IIMs. So मैं सोचा कि JB का भी बहुत नाम सुना है. Of course, JB is JB. ROI में अगर देखा जाए तो JB, FMS, Sydenham like they are number one. तो JB का मैंने सोच लिया था. JB के लिए कुछ सीनियर्स से कांटेक्ट हुआ, आपका वीडियो देखा, तो उसमें बताया गया था कि दे एक्सेप्ट सीमैट एवरी ईयर. शायद बीच में कुछ साल नहीं लिए थे. एंड मैट में कुछ दिसंबर या फेब वाले मैट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि सबके स्कोर्स अलग अलग राइट दिखा रहे थे. राइट. वो मैट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था. पैरामाउंट में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था, तो लाइक नॉट एक्सेप्ट मैट एंड एटमा. तो मैं मैट पे थोड़ा सा था कि हाँ 99.90 शायद कुछ हो जाए. तो देन सीमैट का फॉर्म आया. सीमैट का फॉर्म मैंने दे दिया. अब सीमैट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? बीए इज नॉट अ प्रॉब्लम, आरसी बीए आरसी नॉट अ प्रॉब्लम, देन लॉजिकल रीजनिंग इज आल्सो नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम. अगर आप कैट के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्वांट तो इज केक वॉक. प्रॉब्लम होता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि हम जब भी कैट वैट में फोकस करते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है कि एलआर डीआई बीए आरसी और क्वांट. हम जीए के बारे में सोचते भी नहीं अनलेस आप आईआईएफटी भी दे रहे हो साथ में. आप जीए के बारे में नहीं सोचते. तो जीए एक्चुअली मेरा कैसे स्ट्रांग हुआ? मैं आईबीपीएस पीओ दे रहा था, तो उसके मेंस में जनरल अवेयरनेस लगता है. अब मैं उसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स या आप हिंदू एडिटोरियल बोलो, खुद से नहीं, जो वेबसाइट्स पे आते हैं, और कुछ जनरल अवेयरनेस की बुक, जैसे एक मनोहर पांडे की बुक आती है जनरल नॉलेज 2020 ऐसे करके, पतली सी बुक आती है, उससे मैंने थोड़ा बेसिक्स देखा. फिर लूसेंट तो इज एवरग्रीन, बट लूसेंट इज टू मच. सीमैट के जीके के लिए, सीमैट के जीके में आई गॉट अराउंड 70, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गॉट अराउंड 70 आउट ऑफ 100 इन सीमैट का जीके. उसमें फर्स्ट आई एनालाइज द प्रीवियस ईयर का पेपर. तो कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने एनालाइज किए, तो मैंने देखा कि हाँ कुछ सेक्शन को स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है. जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक, या रिसेंटली अगर डिफेंस ने कुछ अच्छा किया है, या कोई वुमेन एक्सपेडिशन हुआ है, या कोई युद्ध अभ्यास या धर्मागार्जियन, मतलब व्हाटएवर मिलिट्री दिस थिंग हैज हैपेंड. और एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे, जैसे पोलो का कुछ कीवर्ड दे देंगे, ये कीवर्ड किस पे है. तो मैंने एनालाइज किया लास्ट कुछ सालों के पेपर. फिर आपके कुछ मॉक्स दिए थे, तो उसके भी क्वेश्चंस को मैंने देखे, एनालाइज किए. तो ये सारी चीजें करने के बाद मैंने अपना एक नोटबुक बनाया था कि जैसे इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देन आई dedicated 5 to 6 pages of that notebook completely to the index. मैं विकिपीडिया पे गया, list of all indexes 2020, 2019 and India's rank, so list of all military actions taken and all these things मैंने एक करके list wise एक कॉपी बनाया. अब लूसेंट सर एक महीने में करना is almost impossible, everybody knows that. So that copy that I made. अच्छा, 17 questions. तो भाई अगर उसका सॉफ्ट कॉपी है तो हमें भी दो यार. उसका अगर सॉफ्ट कॉपी है तो है, तो सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है, बट आई विल स्कैन इट, आई विल सेंड अ पीडीएफ टू यू. नहीं तो एक काम को स्कैन मत करो. लेट्स नॉट कैरी द फिश फॉर एवरीवन, बिकॉज़ अभी साल चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली दोस ओल्ड नोट्स माइट नॉट बी हेल्पफुल. बट अगर आप हमें बता सकते हो कि जीके कैसे किया जाए, मतलब इन लाइक 5 मिनट्स का टाइम या 2 मिनट्स का टाइम, व्हाट वाज योर अप्रोच टू मेक नोट्स ऑफ जीके? सर जैसे मैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आजकल कैप्सूल देते हैं, राइट, जीके का कैप्सूल देते हैं. मैं कभी डेली करंट अफेयर्स बहुत रेयरली पढ़ता था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था. वीकली हिंदू एडिटोरियल पढ़ लिया, या मंथ में एक बार पढ़ लिया. एक्चुअली मैं क्या किया था सर, जैसे सीमैट है, सीमैट के 5 या 6 दिन पहले कोई वेबसाइट लो, कोई भी वेबसाइट लो या कोई भी ऐप लो जिसका आपको फॉलो करना है, दैट इज अप टू यू. ऑल आर कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल वेबसाइट्स गिव कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन रादर देन फोकसिंग ऑन 10 बुक या 10 वेबसाइट. एक ही पे जाओ, उसी को बार बार करो, उसी को बार बार. 1 week before. That is 1 week before. Okay, 1 week पहले थोड़ा सा इसका कर लिया, सीटी किंग का कर लिया, थोड़ा सा बैंकर्स अड्डा का कर लिया, थोड़ा सा ग्रेड अप का कर लिया. नो, डोंट डू दैट. दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग. कोई एक लो, जैसे मान लो आप अड्डा फॉलो कर रहे हो, ग्रेड अप फॉलो कर रहे हो. हमारा एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग देम अ मंथली पीडीएफ. हर मंथ का ना
जुलाई का, अगस्त का वी गिव द पीडीएफ। यस सर। तो अगर आप बोल रहे हो कि सीमेट के लिए अभी सीमेट जैन में आता है, या कोई भी एग्जाम लो, टिस का एग्जाम ले लो, जैट का एग्जाम ले लो, जिसमें भी सपोज जीके आता है, तो एक हफ्ता पहले इफ आई डाउनलोड ऑल द पीडीएफ, तो फिर क्या किया जाए? तो सर एक हफ्ता पहले तो मंथली पीडीएफ करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं अच्छा, बोल रहा हूँ कैप्सूल, जैसे कैप्सूल्स जो होते हैं वो 6 मंथ्स के इम्पोर्टेंट को आप दे देते हैं। इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ जो करंट अफेयर्स हुए हैं या जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन है वो दे देते हैं। तो ओके, कैप्सूल्स को क्या, मैं जब भी क्वांट किया या एलआर किया, क्योंकि मैं क्वांट तो पढ़ाता था, तो वो तो अपना डेली क्लास में लेक्चर देता था, तो रिवीजन उसी में हो जाता था। वही हो एलआर गया, अपना राइट। रात को कर लिया। और वीएआरसी के लिए मैं जब भी मैं ऑटो में हूँ या बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अपना ऐप खोला, एक पैसेज सॉल्व कर दिया, वर्ड स्वैपिंग कर लिया, कोई सेंटेंस अरेंजमेंट कर लिया, क्योंकि इंग्लिश के लिए आप कभी भी कर सकते हो। राइट। इंग्लिश के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ बुक हो पेन हो पूरा सॉल्व करना है, आप उसको ऑटो में, बस में, चलते, कहीं भी, मॉर्निंग वॉक करते करते, बैठे हुए, आप कब सोचते सोचते कभी भी कर सकते हो आप इंग्लिश। और इंग्लिश को हमेशा करना है। मैं थोड़ा सा सर जीके से अभी डेविएट हो रहा हूँ, मैं बाद में सब्जेक्ट वाइज आऊंगा, बट पहले अगर इंग्लिश से स्टार्ट करूँ, इंग्लिश के लिए जो भी हम लोग दे रहे हैं, मैं सर स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों की बात करूंगा। हिंदी के लिए तो फिर आपका लूसेंट हिंदी इंग्लिश करो, ये करो। तो जो भी इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अब आपको कोई ये तो सिखाएगा नहीं कि प्रीपोजिशन में टू कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, ऑफ कहाँ लगाना है, अगेंस्ट कहाँ लगाना है। दिस एवरीबडी ऑफ अस नो। हम लोग ये सब पढ़ के ही तो यहाँ तक आए कि हम लोग सीमैट मैट या कैट के लिए एलिजिबल हुए, राइट। तो बेसिकली ये चीज, इंग्लिश तो सिर्फ आपका सेक्शनल टेस्ट, क्विज, मॉक्स, इससे अच्छा होगा। इससे आप जितना क्विज दे सको, जितना मॉक, तो जितना सेक्शनल टेस्ट दे सको, जितना सेक्शनल टेस्ट में स्पेशली जितना आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे फोकस कर सको। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पर फोकस करने के बाद आजकल कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब टोन में ऐसा 5 टोन देते हैं, एक तो मीनिंग नहीं समझ में आता उसका, कि सार्कास्टिकल, आयरॉनिकल, ऐसे करके 5 टोन दे देते हैं। तो ये चीज जब मैं सॉल्व करता था, तो मैं इंग्लिश में, जैसे ऐप में ऑटो में हूँ, मैं सॉल्व पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ या मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या कुछ भी कर रहा हूँ मैं, तो मैं एट द एंड अपने मॉक को एनालाइज किया, अच्छा ये वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता, तो ऐसे मीनिंग कर करके मैं एक उस टाइम पेज में लिख लेता था, या मेरे पास जो भी रहता था, या हाथ में, जैसे ही मैं किसी कोचिंग में उतरा या मैं अपने घर पहुंचा, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने वोकैब कॉपी में लिख लेता था। मेरा एक वोकैब कॉपी था, जैसे जीके का था, तो उसको मैं अपने वोकैब कॉपी में लिख लेता था। और फिर उसको लास्ट में, वही जैसे 5-10 दिन पहले आप जीके रिवाइज कर रहे हो ना, वैसे ही 5-10 दिन पहले मैं वोकैब गो थ्रू करता था। अब जीके और इंग्लिश हमेशा मैं लास्ट में रखता था, और क्वांट और ये मैं कम से कम 10-15 दिन पहले खत्म कर लेता था। हाँ, इसमें अब कुछ नहीं करना, मॉक वॉक हो गए, सेक्शनल हो गए। अब जीके के लिए सर जो मंथली कैप्सूल होता है, आप कम से कम 7 से 10 दिन पहले उसको स्टार्ट करो, और अपने हाथ में टाइम रखो। ऐसा नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिया, मैं 5-6 घंटा पढ़ता था उसको। मान लीजिए सर आज रात 8 बजे स्टार्ट किया, 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ा, अगले दिन सुबह 7 बजे उठा, तो सबसे पहले मैंने कल रात को जो पढ़ा उसको मैं आंख बंद करके गो थ्रू करता था कि हाँ मुझे याद है कि नहीं। जो पॉइंट में भूल जाता था, स्पेसिफिकली जो पॉइंट में भूल जाता था, उसको मैं स्टार करके अपने कॉपी में लिखता था, और उस पर डेप्थ वाइज विकिपीडिया पे गया और उस पर डेप्थ में लिखा, क्योंकि जब आप कोई चीज को डेप्थ में लिखते हो ना उस कॉपी में, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम हॉल में, अच्छा ये तो मैं भूल गया था, इसको मैंने उस कॉपी में लिखा था, वो स्ट्राइक कर जाता है उस मोमेंट पे, और जो याद है वो तो याद One है। second, I'll just like to stop you here के you are a very strong proponent के notes बनाओ. So that is नोट्स the बनाओ, one यस। very good strategy which you are recommending everyone कि जितने ज्यादा तुम notes बनाओगे उतना तुम्हें retention आसानी से रहेगा. ये कहावत भी है सर कि लिखी हुई चीज और सुनी हुई चीज ज्यादा याद रहती है एज कम्पेयर टू पढ़ी हुई चीज। और जैसे कुछ वीडियोस आते होंगे, बहुत वेबसाइट्स के आते हैं, या आप ऐसा भी नेट पे आजकल मिलता है कि जीके चल रहा है, आप ईयरफोन लगा लिए, जैसे गाना तो सुनते ही है सब लोग, 1 घंटा निकाल के जीके भी सुन लिया करो, क्योंकि सुनी हुई चीज हमेशा सबसे ज्यादा याद रहती है। ये एक फैक्ट बात है, सुनी हुई और लिखी हुई चीज। तो नोट्स तो इज इनएविटेबल। तो ऐसे मैंने जीके को किया, फिर जीके दिया, सीमैट दिया, सीमैट में 99.9852 ऐसे ऐसे कुछ परसेंटाइल आए, ऑल इंडिया रैंक 10। तो थोड़ा सा फिर खुशी हुआ कि हाँ नाउ जेबी इज पक्का। बट फिर अब कोई बोल रहा था कि ओएमएस सीट्स स्क्रैप हो जाएंगे, मे बी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जेबी को लेके हमेशा अफवाहें बनती रही हैं। Right, right. Yeah, carry on, please.
हाँ, जेबी को लेके हमेशा अफवाहें बनती रहती हैं। तो बेसिकली मैंने फिर सीमैट के बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। हाँ, एमएचटी सीईटी का मैंने फॉर्म भर दिया था क्योंकि आपने कहा था, और कि महाराष्ट्र सीईटी अगर आप बैठो भी नहीं तो अप्लाई करो, बिकॉज लास्ट में डीटी का काउंसलिंग होगा। अगर नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखा रहता तो अभी सीमैट का रैंक 10 सिर्फ पेपर में रहता और कहीं नहीं रहता, उसका कोई ये फायदा नहीं होता। तो जब मैंने वो वीडियो देखा एमएचटी सीईटी, मैंने दे दिया। और आई थिंक 14 तारीख को स्लॉट 2 था मेरा, एज फार एज आई रिमेंबर। पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लॉट 2 इज वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। राइट। तो स्लॉट 2 बहुत टफ है, तो पीपल स्टार्टेड शाउटिंग दैट। तो मैंने 12 या 13 मार्च को आई थिंक वहाँ पे जितने कोचिंग और ट्यूशन थे मैंने उस सबको रिजाइन कर दिया था। मैं सोच लिया था कि नाउ आई विल गो बैक टू कलकत्ता, वहीं पे नाउ आई हैव अ गुड बैकग्राउंड, कैट मैट सीमैट सब निकल गया, तो वहीं पे अप्लाई करूंगा आईएमएस में, सीएल में, या कहीं भी कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा। अगर पीओ हो गया तो हो गया सरकारी नौकरी। तो फिर मैं सोचा चलो लास्ट है एमएचटी सीईटी दे देते हैं। तो एमएचटी सीईटी मतलब महाराष्ट्र सीईटी सीमैट के बाद आई हैड एसएससी सीजीएल टियर 1 9th मार्च आई थिंक, आई डोंट 9th मार्च लास्ट स्लॉट। तो उसमें ऑल्सो आई स्कोर्ड क्वाइट वेल, और उसमें भी मेरे जीके के नोट्स से 15 क्वेश्चन मिल गए। 25 में से 15 क्वेश्चन मेरे उस नोट्स से मिल गए, स्टैटिक वाला पोर्शन एंड करंट वाला पोर्शन। तो मैंने सीजीएल दिया, उसके टियर 1 के रॉ मार्क्स 165.5 आ रहे हैं अभी। तो आई थिंक उसमें भी नॉर्मलाइज होकर 175 180 हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो रिस्पेक्टेबल स्कोर। अब वहां से, बट सीजीएल तो अब दिमाग से उतर ही गया, आई विल नॉट गो इनटू दैट। अब उसके बाद मैंने ना मॉक दिया ना कुछ दिया, जो इतना पहले का बैकग्राउंड था। एक चीज मुझे पता था कि महाराष्ट्र सीईटी इज बीइंग कंडक्टेड बाय आईबीपीएस, और आपने कुछ दिन पहले आईबीपीएस मेंस 2019 का पेपर वीडियो पे डाला था पीडीएफ, और बताया था कि दे विल फॉलो द फ्लोर बेस्ड पजल एंड सर्कुलर पजल व्हिच दे गिव इन आईबीपीएस पीओ, एक्सपेक्टेड पेपर टाइप ज्यादा था, राइट। एक्सपेक्टेड पेपर टाइप, यस। और आपने बताया था कि वो पजल वजल फ्लोर बेस्ड डालेगा। 40 फ्लोर का पजल का आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, याद है? राइट राइट राइट। तो मैंने देखा था। उसके बाद मैं गया, तो मेरे को जो जो स्टडी मटेरियल मिला पजल्स के ऊपर, मैं बोला पजल एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस छूट जाएगी तो नहीं होगा, हाउएवर इंटेलिजेंट यू आर, हाउएवर स्मार्ट यू आर। ठीक है, तो मैं 9 तारीख को जैसे मेरा सीजीएल खत्म हुआ, 14 को मेरा सीईटी था, तो मैंने 12 तारीख को, आई थिंक 12 को मैंने एक बुक आती है मैजिकल बुक ऑन पजल्स, मैं पीओ के लिए भी वही करता था। तो मैंने 12 तारीख को आपका पीडीएफ सॉल्व किया, और 13 तारीख को पूरा वो मैजिकल बुक ऑन पजल्स के जो इंपॉर्टेंट फ्लोर बेस्ड पजल थे वो सब सॉल्व किया। और आई थिंक स्लॉट 2 में आया भी था, पजल बहुत आए थे अलाउड सेक्शन में। राइट। फिर अब एमएचटी सीईटी में आते हैं। मुझे पता था कि आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा एग्जाम, तो पैटर्न सेम होने वाला है कंपेयर टू पीओ प्रीलिम्स एंड पीओ मेंस। और जब मैं गया तो इस लास्ट ईयर के पेपर से इस बार तो बहुत टफ था, अलग ही था, अलग ही था, लेवल ही लगता पूरा। कुछ भी दे दिया था, कुछ भी, मतलब कोई सर ना पैर, जो मन में आए पूछ दिया। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो कुछ नहीं बना उसमें, तो जय सिया राम ABCD। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ज्यादा अच्छा नहीं गया मेरा। मेरे 113 या 14 मार्क्स आए हैं, एंड परसेंटाइल एमएचसीटी में 98.52। तो उसमें एज फार एज आई रिमेंबर इन क्वांट आई मस्ट हैव स्कोर्ड अबव 45 46, क्योंकि क्वांट में 50 क्वांट, बिकॉज मैथ्स का। ओके, वन थिंग आई लाइक टू स्टॉप हियर एक मिनट के लिए, कि भाई सीमेट में टॉप किया और सीईटी में 98 पॉइंट समथिंग आया, तो ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम जितने ज्यादा एग्जाम दोगे ना उतना आपको फायदा देगा, बिकॉज वी नेवर नो कि तुम यहाँ पे टॉप कर जाओ, वहां पे तुम्हारा अच्छा स्कोर ना आए। जबकि नॉर्मली क्या होता है, लोगों का सीमेट में कम आता है, सीईटी में अच्छा आता है। तो तुम्हारा साथ उल्टा हो गया, तुम्हारा सीमेट में ज्यादा आ गया और सीईटी में थोड़ा कम हो गया। ऑब्वियसली आपका फोकस, विनीत आपने ऑलरेडी हमें बता दिया कि ऑलरेडी सीमेट हो गया था, तो सीईटी पे ज्यादा फोकस भी आपने नहीं किया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑलरेडी तुम्हारा स्कोर है वहां पे। सो गिव एज मेनी एग्जाम एज पॉसिबल। हाँ, सॉरी, कैरी ऑन। मैंने जो जो एग्जाम, मतलब उस टाइम तो क्योंकि मैं उतनी बड़ी जॉब छोड़ के आया था, एंड आई वाज द सोल अर्नर ऑफ माय फैमिली, भाई का भी ऐसा हो गया था, तो थोड़े एग्जाम्स को मेरे को बजट में रह के देना भी पड़ा। क्योंकि अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है ना, लाइक मैं तो अभी सेल्फ डिपेंडेंट था, अर्न कर रहा हूँ, एजुकेशन लोन का ईएमआई भर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, तो मुझे सारी चीजें देखनी पड़ी कि अब मैं जैट नहीं भर सकता, आईएफटी नहीं भर सकता। तो मैंने उस एग्जाम्स पे फोकस किया जिसमें एक एग्जाम देने से ज्यादा कॉलेजेस को आप कवर कर सकते हो। तो अपने रेंज के भी बाहर था, और सारे एग्जाम्स आप समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट अपने लाइफ में अगर सब एग्जाम भरे तो एक साल में आप 25-30 हजार का तो सिर्फ एग्जाम भरते हो, बाकी स्टडी मटेरियल अलग, खर्चा अलग। तो वो सारी चीजें सोच के करनी पड़ी।
और आजकल तो इतना फीस है, 2-3 हजार रुपए सिर्फ फॉर्म भरने के लिए लेते हैं, प्लस जीएसटी अलग, बाकी वो सबको आजकल पता ही है, राइट। एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, हजार रुपए उनका फीस है, नाबार्ड, आरबीआई, इनका हजार रुपए का इसका ये आ गया। तो सब चीजें सोच के मैंने भरी। सीमैट मैंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैंने सोचा सीमैट में स्कोर कर सकता हूँ मैं अच्छा, ये मुझे लग गया था, बिकॉज उसमें जीए है, जीए में अपना स्पेशली इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट काफी अच्छा कर दिया था। क्योंकि मैं 28 जनवरी को मेरा सीमैट था और 2 फरवरी को मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था भोपाल में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरा इंटरव्यू था। तो आप समझ सकते हो 4 दिन पहले मैं आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, यानी मैं उसके 15 दिन से, जैसे ही मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर आया 15 दिन 20 दिन पहले तो मैंने ट्रेन का टिकट कटाया, उसके बाद मैं सीधे जनरल बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चालू कर दिया, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ये सारी चीजें मैंने पढ़ना चालू कर दी। और ऑफकोर्स सीमैट में जैसे पूछा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि कोई एक कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री के बारे में पूछा था कि ये निधि स्कीम या कौन सा स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ऑल दिस थिंग्स वर आस्क्ड टू मी इन द आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू आल्सो, तो ये ओवरलैप कर गया, उससे मेरा जीए का प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। अब जब मैं सीईटी में, अब मैं वापस सर सीईटी में आ रहा हूँ, सीईटी में क्या है, मुझे ऐसा लगा इस बार का सीईटी अटेम्प्ट करके कि एलआर सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, ऐसा मुझे लगा। एलआर और खास करके वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपको समझ में आ गया उस पर्टिकुलर टाइम में, तब तो आप निकाल लिए सीईटी 5 अच्छे नंबर से। अगर वहां पे आप नहीं समझ पा रहे हो कि हाँ कौन सा पैटर्न किसको फॉलो कर रहा है और आप वहां कहीं 5-10 मिनट वेस्ट कर दिए, तो वो प्रेशर बिल्डअप होगा। कंप्यूटर स्क्रीन में टिक टिक घड़ी बजते रहती है कि हाँ 10 मिनट कम, 20 मिनट कम, एक तो वो टेंशन अलग होता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, प्रेशर बिल्डअप होते जाता है, और जैसे जैसे प्रेशर बिल्डअप होता है आपका परफॉर्मेंस लेवल, कुछ लोग का होता है सर कि परफॉर्मेंस प्रेशर पे अच्छा होता है, बट जनरली मैं एक एज अ जनरल रूल बता रहा हूँ, विथ प्रेशर परफॉर्मेंस डिक्रीजेस, बिकॉज दिस थिंग ना डज नॉट बिकम स्टेबल। अरे यार 40 मिनट बाकी है, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन करने, इंग्लिश में भी वो पैसेज रह गया, तो इसीलिए भले ही देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट और समथिंग इन सीईटी, आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स लिसनिंग टू दिस कि एक अपने दिमाग में सेक्शनल टाइम लिमिट सेट कर लो कि हाँ बीआरसी को मेरे को इतना मिनट देना है तो देना है, मैथ्स को डीआई को इतना देना है तो देना है, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, अगर उससे ज्यादा हुआ तो आई लीव, आई गो टू द अदर सेक्शन। अब अगर टाइम बचता है देन आई कम। अब एक साथ में आप उतना, मतलब आप क्वांट करने में बिजी हो गए, जिसका क्वांट स्ट्रांग है ऑफ कोर्स दे गो विद देयर स्ट्रांग पार्ट फर्स्ट। हाँ ये भी मैं बताऊंगा, जिसका जो स्ट्रांग है प्लीज गो विद दैट पार्ट फर्स्ट, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज आप जा रहे हो, आपका क्वेश्चन अच्छा बन रहा है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। हाँ आप मैंने जैसे पहले मैथ्स किया था, क्वांट किया था, 46-47 क्वेश्चन में मैं एकदम श्योर था, और लास्ट के 3 क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं था, तो मैं बाद में आया और वो भी सही, मतलब बन गए। और बीआरसी में भी मैं 40 प्लस क्वेश्चन में सही था। तो जैसे मैंने ये कर लिया, मैंने बोला हाँ यार 90 प्लस तो आ रहे हैं, सर बताते हैं मॉक में 90 प्लस मतलब ठीक था, अब बाकी एलआर में 100 में तो 25-30 तो हो ही जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैं एलआर और इसमें गया एब्स्ट्रैक्ट में, तो खैर उसमें 25-30 तो नहीं हुए, 24 हुए शायद, बट स्टिल उसने परसेंटाइल एक रिस्पेक्टेबल पहुंचा दिया। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग पार्ट को पहले करो और सेक्शनल टाइम लिमिट अपने दिमाग में सोच लो, और अटेम्प्ट एज मेनी एग्जाम्स दैट इज पॉसिबल। अब ये नहीं कि, और थोड़ा सोच समझ के, जैसे अब आपको जेबी का करना है तो जेबी क्या लेता है, सीमैट लेता है, एमएचसीईटी लेता है, अगर महाराष्ट्र वाले हो तो एमएचसीईटी, आउटसाइड हो तो सीमैट लेता है। तो थोड़ा सा फोकस प्रिपरेशन करके कुछ ऐसे एग्जाम्स टारगेट करो जो सिमिलर हो, more or less sir, apart from GA section I think CET will be slightly higher than CMAT, and also आप CET जब दे रहे हो, CMAT दे रहे हो, मैट दे रहे हो, तो आप IBPS PO, RRB PO, SBI PO या जो भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, या LIC AAO, अपार्ट फ्रॉम NABARD, SEBI एंड RBI, दे आर रेगुलेटरी एग्जाम्स, तो वो अलग ही लेवल पे हो जाता है। आई थिंक सर RBI ग्रेड भी इज इक्विवेलेंट टू IIM अहमदाबाद, IIMA का कन्वर्ट, तो उसको हम थोड़ा सा भूल जा रहे हैं। तो आप ये सारे एग्जाम्स क्यों दो, भले ही कुछ लोग सोचते नहीं यार MBA करके अच्छा पैकेज कमाना है, कमाओ, लेकिन 800 रुपए का IBPS का फॉर्म तुम भर सकते हो, तो तुम्हारा लेवल पता चल जाएगा तुमको। IBPS जनरली CET से बहुत पहले होता है, आप मॉक्स जितना दे दो, मॉक्स इज वेरी गुड फॉर एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस, बट जब आप ऑल इंडिया एग्जाम्स देते हो उस लेवल पे, वो एनवायरमेंट रहता है, बायोमेट्रिक हुआ,
3 घंटे कंप्यूटर के सामने दे रहे हो, वो टाइम वहां जा रहा है, बगल में आप 1000 बच्चों से घिरे हो, उस माहौल में जो आप एग्जाम देने का माइंडसेट बनाते हो ना, दैट रियली हेल्प्स इन द लॉन्ग रन. तो ऑलवेज कीप अपियरिंग एग्जाम्स विद इन योर रेंज. एंड ऑल्सो बैंक एग्जाम, सीजीएल, जितना हो सकता है करो. आज के डेट में सर करियर बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि Right. लाख, 20 लाख, 25 लाख आप तो लेते जाओ. रेलवे का टीटी का एग्जाम में 3 करोड़ लोग अभी आरआरबी के फॉर्म भरे हैं, और एग्जाम का कुछ अता पता है नहीं, जो अभी रिसेंट कुछ दिन पहले आरआरबी का आया था. तो यू आर कंपीटिंग विथ 3 करोड़ पीपल, आई थिंक 1.5 करोड़ पीपल फॉर अ टीटी का पोस्ट, राइट? तो Right. यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन हियर. तो अटेम्प्ट एवरीथिंग. मान लीजिए अगर किसी को आईबीपीएस मेयो मिल जाता है और किसी को आईआईएम एबीसी नहीं मिलता, एक्चुअली जो मेरे साथ हुआ, I'm lucky enough कि I'm most probably getting into JB, if I'm not wrong. I think हो सकता है. तो अगर ऐसा भी नहीं, fingers crossed रखो. क्रॉस या फिंगर्स क्रॉस्ड, नॉट येट श्योर. बट अगर आप आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में भी चल जाते हो, सी द एग्जाम स्टैंडर्ड इज सेम. एंड आई विल से दैट अगर कैट में 2 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, तो 2 लाख में से जो 1 लाख कैट अपीयर कर रहे हैं वो आईबीपीएस पीओ एसबीआई ओवरलैप होता है. अगर आप वेन डायग्राम बनाओ सारे एग्जाम का, तो ओवरलैप हो जाएगा सारा एग्जाम. If you make a Venn diagram, it will overlap. That is true. Because सब एग्जाम देते हैं, और ये करना भी चाहिए. You never know. Rather than hard work and smart work is necessary, but luck is also very very important nowadays. Right. Luck is very very important. ये बहुत important है. सारे एग्जाम्स देना चाहिए. एंड कैट, सीईटी, एक तरह के एग्जाम्स को आप टारगेट करो. अगर आपको लगता है कि हाँ सिर्फ आईआईएम ही मेरा टारगेट है, तो कैट दो. उसके लेवल का और क्या होता है, जैट. कैट जैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर. उससे एसपी जेन में यू कैन गो. और अगर मान लीजिए कैट नहीं हो रहा आपको, चलो आपको, जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर लेके बताऊं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू आईआईएम एबीसी, बट आई एम गेटिंग इनटू आईबीपीएस पीओ इंडियन बैंक एज अ मैनेजर, राइट? So I'm getting into a class 1 service. In 6 to 7 years or maybe 4 years, I can become a senior manager. Then after that, the doors of an executive MBA are always open. There you will be financially stable. 4 साल में तुम पैसे भी कमा लोगे ठीक ठाक, घर का सिचुएशन भी सही हो जाएगा. And after that, when you go for the executive MBA का interview and online, you will have something to say about it. मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जरूरी है, so that you get something to talk about in the interview. Like when I went for this IBPS का interview, तो like average IBPS PO में 15-20 मिनट का इंटरव्यू चलता है. उसमें से 5 minutes they asked me about economics, 5 minutes they asked me about RBI के functions, SEBI, NABARD, NPA and all those banking terms, and rest of the 10 minutes they were discussing with me about my profile. हाँ, जहाज पे क्या होता है, marine engineering, how big a ship is, like how many months do you live in water, अच्छा वहाँ सब खाने को मिलता है, Indian food मिलता है, all these things. So if your profile is good, then I think you have lot to say about in the interview. And when they are interested ना, थोड़ा unique, अगर जैसे suppose मान लो मैं मरीन इंजीनियर हूँ, अब कोई अगर फोटोग्राफी या कुछ ऐसा ही कुछ अलग सा कोर्स करके आया है, इंजीनियर्स को देख देख के, स्पेशली आईटी इंजीनियर्स, विद नो ऑफेंस टू देम, बट वो देख देख के, आईटी और कंप्यूटर वाले को देख देख के ना, इंटरव्यूअर्स के पास भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता. कोडिंग 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 कोडिंग, तो वो भी कहीं ना कहीं पक जाते हैं. तो अगर आपके पास कुछ अच्छा है, फ्री टाइम है, अभी एआईसीटी के कितने सारे कोर्स चल रहे हैं, या बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स चल रहे हैं. जैसे मैंने आप ही के इस पे देखा था सर, आईआईएम बैंगलोर का कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स था. तो अभी आप टाइम यूटिलाइज करो. ये लॉकडाउन बहुत बढ़िया समय है, इसमें आप प्रोफाइल बिल्डअप करो, सर्टिफिकेशन कोर्स करो. जो कॉलेज में है वो कोशिश करो कि कॉलेज से डिबेट में जाएं, एक्सटेम्पर में जाएं, या कुछ क्विज में जाएं. कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करो, बिकॉज इन द लॉन्ग रन दीज थिंग्स डू मैटर. Right. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, work very very hard. Follow a single book. जब तक follow a single book and revise it multiple times. Make notes. And एक लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दो. कभी जब आप प्रिपेयर करते हो ना, ये फोटो कोई कुछ लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग. हाँ, मैंने आज तक, मैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर किसी पे हूँ भी नहीं. I just use WhatsApp, क्योंकि उसमें Zoom पे जब मैं क्लास लेता हूँ तो मीटिंग आईडी पासवर्ड भेजना पड़ता है. That's it. But that's the only use of WhatsApp, and sometimes I send the PDF while I'm teaching. Nothing else. But rather than showing it off now, let the people know who you are after you achieve it.
पहले कर ले तो हाँ भाई मैं तो IIM में जाऊंगा, कहीं ना कहीं अनडाउटेडली यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन योर सेल्फ ट्रू। कि हाँ नहीं होगा तो फिर मुंह छुपा के इधर उधर भागोगे, राइट। मैं तो जमनालाल में जाऊंगा, आई विल बी द CEO फैक्ट्री में जाऊंगा, आई विल बी द नेक्स्ट CEO, आई विल बी द नेक्स्ट चंदा कोचर। बट फर्स्ट यू शुड, माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से, अभी भी बोलते हैं, यू शुड फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। राइट। पहले उस काबिल बनो, फिर उस सपने को देखो और प्रोफाइल बिल्ड करो, हार्डवर्क करो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। Very nice, very nice. Last question which I normally ask everyone: how has CETing helped you in this journey? Sir, your videos are like absolutely wonderful. Then G strategy, always to talk about. अरे वाह, मतलब भाई Abstract. मेरे को क्या लगता है, सी जी स्ट्रेटजी वाज फॉर द गरीब स्टूडेंट, लेकिन इस बार टॉपर लोग आके बोल रहे हैं कि टॉपर लोग भी जी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, स्पेशली इन द Sir, वीक। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में CET में लगाना पड़ा और कोई चारा नहीं था। एंड आपके मॉक्स सर सीमैट के एग्जैक्टली सिमिलर थे ऑन द पैटर्न। तो उससे पहले एक्चुअली सर उतना आइडिया नहीं था, मतलब CET के बारे में मैंने जाना नहीं था। तो उसके बाद अभी तो सब्सक्राइब्ड है और अभी आपका 10 PM वाला MBA शो डेली, स्पेशली वो कुछ दिन पहले दैट वीडियो आई सॉ कि IIM अहमदाबाद, वो तो मैंने देखा। उससे पहले आपने सर एक वीडियो बनाया था IIM अहमदाबाद पे कि योर एक्स मैरिड एन IIM, ये वाला। तो सर मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप देते रहते हो कंटिन्यूअसली। इट कैन बी इधर थ्रू योर एक्स और इट कैन बी लाइक थ्रू द जॉब प्रोफाइल और थ्रू द पैकेज, वॉट एवर इट इज। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई विल नॉट नेम एनी कॉलेज। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ बेटा क्या कर रहे हो, आई एम डूइंग MBA फ्रॉम XYZ, और अगर कोई दूसरा पूछ रहे बेटा आप क्या कर रहे हो, आई एम डूइंग MBA फ्रॉम जमनालाल या आई एम डूइंग फ्रॉम MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा, द अदर पर्सन जो आपको सुन रहा है फर्स्ट ही विल से ओ। अगर आप MBA फ्रॉम XYZ बोलोगे तो बोलेगा हाँ लाइक दिस, और अगर आप MBA फ्रॉम IIM ABC या जमनालाल या SP जैन या XLRI बोलोगे तो विल से ओ अच्छा, well done, good. That is the expression. The status in the society itself raises when you raise your bar and achieve the highest. Now पहले लोग मुझसे, जब मैं पढ़ाता था तो लोग बोलते थे अरे यार इतना बड़ा इंजीनियर है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, पढ़ाता है। बट नाउ व्हेन पीपल कॉल मी व्हाट आर यू, मैं जब बोलता हूँ आई एम अबाउट टू बिकम असिस्टेंट मैनेजर इंडियन बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थोड़ा सा वैल्यू डबल हो गया और वैल्यू डेवलप हो जाता है। सही बात। पहले सर मैंने आपको भी बहुत कॉल किया था, नागपुर सेंटर से आपका नंबर भी लिया था। आई वाज प्लानिंग टू अप्लाई फॉर योर इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग, बट तब आपने भी कॉल नहीं उठाया था। आज फाइनली आप कॉल उठाए। आई एम सो सॉरी यार, उतने एक्चुअली इतने कॉल आते हैं ना दिन का, मैं अभी उठ चुका हूं कि भैया ऊपर उठ चुका कि मुझे बात ही नहीं करनी किसी से। इन द लाइटर सेंस आई विल से, पहले मेरे पास क्रेडेंशियल्स नहीं थे, अब क्रेडेंशियल्स है तो पीपल विल आस्क यू। इन द लाइटर सेंस व्हेन यू हैव क्रेडेंशियल्स, फोकस ऑन दैट। आज मेरे पापा मम्मी को लोग फोन करके बोलते हैं आपका बेटा इतना अच्छा कर दिया, कमाल कर दिया, तो दैट इज द बेस्ट फीलिंग फॉर मी, दैट इज द बेस्ट फीलिंग। देखो आप एक सरकारी इसके ये हो गए और आपका दोनों बेटा, लाइक इवन माय ब्रदर वेंट टू द एयरफोर्स, तो अब उनके लिए इससे बड़ा बात और क्या होगा। दे अचीव्ड, लाइक देयर एसेट्स आर डूइंग गुड थिंग्स, दैट्स the biggest achievement for them. Yes. जब रिजल्ट आता है तो उनके आंख से जब आंसू निकलता है, I've never seen my dad cry, but when he cried I realized what it means to him and the amount of hard work he has put in raising me up. So do it for your mom, dad, do it for yourself, and do it for all those who have like and क्या बोल सकते हैं, they have a hope from you, right? Your उल्टा भी जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनके लिए भी प्रूफ करके दिखाया। राइट। लाइक मेरे को भी बहुत लोग बोले ना कि आप अरे पढ़ाते हो कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही है बस, तो उनके लिए भी एक तरह का ये था। बट बेसिकली आप एट द एंड ऑफ द डे, एक लाइफ है, वो भागवत में बोलते हैं ना कि इतने करोड़ योनियों के बाद ये जीवन मिलता है, तो क्या एक लाइफ ऐसे ही मर जाना है क्या? 25-30 हजार की 40 हजार की नौकरी करो, खा रहा हो 5 बजे, उसके बाद चाय पानी खाओ, समोसा खाओ, सो जाओ, बस ऐसे ही जीना है क्या? नहीं, you have to do something big. From here I'll prepare for RBI grade B. Let's see what happens. Superb. Thank you, yaar. Thank you for coming online. Thank you so much. much. Lovely session, beautiful session, very motivating. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. It was a pleasure talking to you. I hope you'll be in touch. Yes. We will be in touch. Bye. Sir. Thank you so much. Bye, sir. Good night.